Good morning to all. So today we are going to discuss about conservation of energy. Do we have little bit idea regarding conservation of energy? In schooling, we read about conservation of energy. Okay. So we know that what is conservation of energy? Now, energy neither be created nor be destroyed, but it can change from one form of energy into another. Okay. तो ये है स्कूल में अपन पढ़े थे जे एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can change from one form of energy to another. Next is total energy of an isolated system. The total energy of an isolated system remain constant. Okay. So this is the definition of conservation of energy. First is energy neither be created nor be destroyed, but it can change from one form of energy into another. Total energy of an isolated system remains constant. तो आइसोलेटेड सिस्टम रो माने हैला जदि गोटे सिस्टम उपरे एक्सटर्नल फोर्स 0 अछि तो सेटा को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोली कहि थांदी एवं गोटे आइसोलेटेड सिस्टम पय टोटल एनर्जी टा आपनकर कांस्टेंट आसीबो तो ये हैला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट हम पढ़िबा मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी तो हम काइनेटिक एनर्जी पढ़िले, पोटेंशियल एनर्जी पढ़िले. नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कोन? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट है इट इज द सम ऑफ kinetic and potential energy of a body. तो किसी बॉडी अछि जहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी अछि, किसी बॉडी अछि जहाँ ओनली पोटेंशियल एनर्जी अछि, बट किसी बॉडी अछि जहाँ काइनेटिक बोथ पोटेंशियल एनर्जी से स्टेटेड होउछि. तो दी जन पर सम टा को हमें मैकेनिकल एनर्जी वाली कहंती. तो मैकेनिकल एनर्जी कोन? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी. ठीक है ना? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी is equals to kinetic energy plus potential energy. Okay. Next है
it is a scalar, तो ये गोटे हला scalar quantity mechanical energy का and measured in joule. Okay, तो mechanical energy is also scalar physical quantity जहाँ हम joule रे measurement करते हैं and depends upon frame of reference. तो मैकेनिकल एनर्जी का आपनकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर डिपेंड करे जे लॉज ऑफ मोशन आपनकर कुहाय थिला सेठी कुहाय थिला इटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करे गोटे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गोटे आपनकर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. When kinetic energy is equals to 0 and potential energy is equals to 0, then and only then mechanical energy is 0. तो मैकेनिकल एनर्जी 0 होबेरा केवल गोटे ही मात्र कंडीशन जते बेले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दीटा 0 हेथिबे बा इक्वल एंड ऑपोजिट हेथिबे और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एंड ऑपोजिट ताहले तमरे आटा 0 हो जदि दी जण जाको 0 हेले ताहले मैकेनिकल एनर्जी 0 हो यदि काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू जहा पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू सेति नेगेटिव रे आसीला तो सेते बेले भी आपनकर मैकेनिकल एनर्जी 0 आसीबो. ठीक हैला तो ये थिला मैकेनिकल एनर्जी जोड़ा थिला आपनकर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट है conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. So now it states that the mechanical energy of a system
energy of a system remains constant. Mechanical means sum of kinetic and potential. It states that the mechanical energy of a system remains constant if work done by external force on the system. If work done by external force on the system external force on the system is zero. On the system is zero. And the external force must be conservative. देखो conservation of mechanical energy on next states that the mechanical energy of a system remains constant if work done by the external force on the system is zero and external force must be conservative. तो mechanical energy रो conservation केते बेला आसीबो ना जदी गोटे force द्वारा work done रे zero हैला ताहाले mechanical energy रे constant आसीबो एवं सी force टा conservative in nature हेथिबा दरकार. तो गोटे force टा conservative केते बेला होबो जदी work done by the force independent of path. तो गोटे फोर्स द्वारा वर्क कराला एवं सी वर्क टा यदि पाथ ऊपर डिपेंड करला नाही गोटे फोर्स द्वारा वर्क करागला वर्क यदि पाथ ऊपर डिपेंड करला नाही त हम कहिबा सी फोर्स टा कंजर्वेटिव इन नेचर. तो गोटे कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा यदि वर्क डन टा जीरो हैला ताहाले हम कहिबा सेही केस रे मैकेनिकल एनर्जी that is kinetic energy plus potential energy is equals to constant. बुझिएगा एग्जांपल कौन चले तर एग्जांपल है ना anybody example है ना anybody projected in any direction anybody projected in any direction anybody projected in any direction from earth surface. Anybody projected in any direction from earth surface तेई केस रे kinetic energy plus potential energy is equals to 0 the work done है 0.
आउ कोन हैला बर्तमान एई जगह रे आपनकर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड हबो बुझी पाले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी माने जदि गोटे कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन हैला एवं वर्कटा बाय द सिस्टम जीरो हैला ताहले मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इज द एग्जांपल हैला जदि गोटे बॉडी को हम एनी डायरेक्शन रे प्रोजेक्ट करबा अर्थ सरफेस पाखरो ताहले हेई पाइबो नेक्स्ट आउट एग्जांपल हैला सिंपल पेंडुलम the simple pendulum based on the principle of conservation of mechanical energy কিন্তু সেই কইলা but if a body move on a rigid surface किंतु गोटे बॉडी यदि रिजिड सरफेस में मोशन करला देन मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट यदि गोटे बॉडी का कोन हैला रिजिड सरफेस में मोशन करला त मैकेनिकल एनर्जी का कांस्टेंट होबो नाही कहीं ना because the internal force of friction is not conservative बुझिबाले द रफ सरफेस का कोन जीवे सेटा इंटरनल फोर्स आसीबो फ्रिक्शनल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स तो कंजर्वेटिव नहीं तो तार आउटकम जीरो हबोनी तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होई परिबो नाही बुझिबाले नेक्स्ट चला कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली falling body freely falling body रो conservation of mechanical energy calculate करा जीवो तो माने करंतु एटा थिला ग्राउंड एटी हला आपनकर गोटे बॉडी थिला तो ग्राउंड पाखरो ए बॉडीटा आपनकर एज हाइट रे थिला इजे हला आपनकर ग्राउंड तेरे फ्री फॉल करूथिला ग्राउंड को खसुथिला तो हम तो तीनटा पोजीशन कंसीडर करबा गोटे ए पोजीशन गोटे बी पोजीशन और गोटे ग्राउंड रे पहुंचीबो सी पोजीशन तो बर्तमान बी पोजीशन माने करंतु एई हाइट रे केते खसी वाला x खसीला तो ग्राउंड पाखरु से रहिला h - x एथि हाइट तो बर्तमान ए हला गोटे बॉडी जहार मास m थिला लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग तो हम लिखवा let us consider a body of mass m falls freely
freely under gravity to the surface of earth at which acceleration due to gravity small g बुझिएला तो मन करंतु एटा है गोटे बॉडी जहार मास है m अछि जोटा फ्री फॉल होछि अंडर ग्रेविटी टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जो जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g अछि तो वर्तमान केते हाइट रे अछि एटे हाइट h हाइट रे अछि तो वर्तमान एठी हम हाइट टा को बहुत स्मॉल नबा बेसी नबा नहीं काहे एटे हाइट आपनकर h तो हमें एबे देखुथिले यदि हाइट हम बढ़ाई दवा तबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमे जिवो यदि हमें रेडियस बाय 2 सेति हाइट रे उठी जिवा तो वर्तमान हाइट टा बेसी नबानी काहे ना हाइट टा यदि हम बेसी जिवा जरा हम जानि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमी जिवो जते ऊपर जिवा और 3200 किलोमीटर पहुंची गेल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जो सेति में हाइट टा बेसी नबानी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ तो गोटे बॉडी मास m अछि जोडा h हाइट रे अछि जोडा नॉट लार्ज बेसी हाइट होबनी बहुत कम हाइट रे अछि तो सेटा फ्री फॉल करूछि ग्रेविटी बाय जोडे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g अछि जब से खसुची तो आमे तार मेकानिकल एनर्जी रा देखिबा तीनटा पोजीशन रे देखिबा फर्स्ट एची जते बळ थिबो तार मेकानिकल एनर्जी केते बी पोजीशन रा मेकानिकल एनर्जी केते ग्राउंड को से टच करे जिवो तो सेते बळे सेही पोजीशन रो मेकानिकल एनर्जी केते आसीबो तो जदि सब जगह रो मेकानिकल एनर्जी सेम आसीला ताहले हम कहिबा जे मेकानिकल एनर्जी इज कंजर्व बा मेकानिकल एनर्जी ता आपनकर कांस्टेंट अछि तो बुझी पाले फर्स्ट हम कोन करिबा न तीनटा अलग अलग पोजीशन रे मेकानिकल एनर्जी केते आसीबो सेटा कैलकुलेट करिबा मेकानिकल एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी बाहर करिबा पोटेंशियल एनर्जी बाहर करिबा दिटा ऐड करिबा यदि a पॉइंट रो जति आसीला b पॉइंट रो भी सेति आसीला अपन c पॉइंट रो भी सेति ही आसीला तले अपन कहया मेकानिकल एनर्जी ता कांस्टेंट हेछि बा कंजर्व हेछि तले देखो जते बेले 8 पॉइंट ए अपन ए पॉइंट कथा चिंता करंतु तो जते बेले सेटा h हाइट ऊपर थिला तो सेते बेले तार पोटेंशियल एनर्जी केते थिला 8 पॉइंट ए रे पोटेंशियल एनर्जी थिला m g h बता देखंतु एटी माइनस mgs लिखा हिनी काहे कि ना हम तळु ऊपर पठौ ना से ऊपर तळु खसुची सेति में प्लस mgs लिखि चंती ताले एट a रे इनिशियल वेलोसिटी u कोन थिला 0 थिला इनिशियल वेलोसिटी तार 0 थिला तेनु तार काइनेटिक एनर्जी कोन आसीबो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर 0 आसीबो ताहले a पॉइंट रे मेकानिकल एनर्जी कोन आसीबो आपनकर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेटा हला आपनकर is equals to mg 0 plus mgh और 0 plus mgh है आपनकर mgh तो आपण a पॉइंट रे मेकानिकल एनर्जी केते पाइले ना mg h बुझिए तो वर्तमान 8 पॉइंट b को आसन b पॉइंट तो b पॉइंट ग्राउंड पाखर केते हाइट रे अछि ना h - s पूराटा h जेतेबे b रे से आसी पहुंचिला मन करंतु x डिस्टेंस कसी आसी तो b पॉइंट ग्राउंड पाखर h - x एतकी हाइट रे अछि तो वर्तमान b पॉइंट रे वेलोसिटी 0 होबानी काहे से मोशन रे अछि
जेते से खसिबो तो सेही जगह केते वेलोसिटी के फास्ट बाहर कर दबा आपन सूत्र हैला v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 g into h v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as सीधा मोबे तो इनिशियल वेलोसिटी तार आपन 0 थिला प्लस 2 into g ग्राउंड को केते हाइट रे अछि ना h माइनस x हाइट रे अछि बुझी पाले तले फाइनल वेलोसिटी केते गला आपनकर 2g होल इनटू h माइनस x v स्क्वायर तले अगर काइनेटिक एनर्जी कोन आसीबो ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी रो स्क्वायर तो हे गला हाफ इनटू 2 इनटू g होल इनटू h माइनस x आपनकर 2 2 कैंसिल हे गला तो रहिला केते ना g होल इनटू h माइनस x m सॉरी m रे छोड़ दे इसे गोटे m रहइबो m रहिला m g होल इनटू h माइनस x तो वर्तमान b पोजीशन रे काइनेटिक एनर्जी हैला mg होल इनटू h माइनस x बुझिएला ताहले देखो ताहले बी पॉइंट रे आपनकर पोटेंशियल एनर्जी कोन आसीबो पोटेंशियल एनर्जी है जति हाइट खसी छी बी पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी हैला m g x कितनी हाइट खसी छी आमी जतकी हाइट उठेले सेतकी वर्क करिया पे पड़िबो तो जतकी हाइट से खसिला सेतकी वर्क डन बाय द ग्रेविटी सेति पई क्रॉस mgh हैला तले इछि मेकानिकल एनर्जी केते आसीला आपनकर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कोन हैला mg होल इनटू h माइनस x प्लस पोटेंशियल एनर्जी कोन हैला mgx सिंपलीफाई कर दियंतु mgh माइनस mgx प्लस mgx इधर कैंसिल हो गला तो b पॉइंट रे आपनकर एनर्जी आसीला mgh तो अपन a पॉइंट रे मैकेनिकल एनर्जी mgh पाइथिले तो b पॉइंट रे भी मैकेनिकल एनर्जी केते पाइले ना mgh a b रे समान आसीला आ रहि गला आपनकर c पॉइंट का C पॉइंट तो देखिबा हम केते वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करिवो तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs इनती था तो वर्तमान देखंदो एठी इनिशियल वेलोसिटी हैला 0 अछि तो v स्क्वायर इक्वल टू केते हैला 2g h का टोटल केते हाइट से कवर करला h हाइट से कवर करला तो वर्तमान हैला 2gh तो वर्तमान काइनेटिक एनर्जी कोन आसीबो काइनेटिक एनर्जी आसीबो हाफ m इनटू v स्क्वायर कोन होबो सेटा तो हाफ m रहिला m/2 इनटू 2gh 2 टू कटि गला तो काइनेटिक एनर्जी आसीला mgh को जगह रे ना को c पॉइंट रे तो c पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी हैला mgh और c पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी कोन आसीबो पोटेंशियल एनर्जी रो सूत्र हैला mgh एते हाइट कवर करला तो वर्तमान पूरा तरफ पळे आसीला तो h इक्वल टू कोन हेगला 0 हे गेला एट c h इक्वल टू 0 पूरा हाइट 0 हे गेला तो mgh कोन हे गेला 0 आसी गेला पोटेंशियल एनर्जी आपनकर c पॉइंट रे 0 हेला तो मैकेनिकल एनर्जी कोन हेला तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपनकर हैला mgh पोटेंशियल एनर्जी हैला 0 तो हे गेला mgh तो देखंतु a पॉइंट रे मैकेनिकल एनर्जी पाइले mgh
बी पॉइंट रे अपन मेकानिकल एनर्जी पाइले mgh, सी पॉइंट रहला मेकानिकल एनर्जी mgh। तो सब जगह रो मेकानिकल एनर्जी समान आसिला तो हम कहबा इन केस ऑफ a freely falling body mechanical energy is constant। okay। देखिए अपन लिख देबे hence in case of a freely falling body mechanical energy is constant। और एग्जांपल खुले अपन सिंपल पेंडुलम जो से अपन देखो चंदी मैकेनिकल एनर्जी टा कांस्टेंट रही छी। ओके। वर्तमान किसी असाइनमेंट क्वेश्चंस can potential energy of a body be negative। नंबर है on what factors does potential energy of a body depends। okay। तीन नंबर है two protons the protons are brought towards each other will their potential energy decrease or increase? Will their potential energy increase or decrease? ठीक है ना।
satellite revolving around Earth does its potential energy increase or decrease. Next question है on what factor does potential energy of a spring depend? So this is the assignment questions. Thank you all.